Hello and welcome everyone. Today I am starting with chapter number 10 for 10th standard economics, that is money and functions of money. The scope of this chapter include introduction to the barter system, difficulties of barter system that led to the evolution of money, meaning and definitions of money, and also functions of money. Now let us start with an introduction to barter system of exchange. Barter system of exchange is that particular type of exchange in which goods and services are directly exchanged for some other goods and services. In short, money is not included in this kind of exchange. It is an exchange of goods to goods exchange. मतलब कोई आपको कुछ particular goods देगा और उसके बदले में आप उनको कुछ particular goods दे सकते हो. Clear? Just for an example कि एक particular person अगर आपको assume करो mango offer कर रहा है तो आप उसको orange offer कर दोगे. That is a particular type of an exchange known as barter exchange. Okay, so barter is a system of exchange by which goods or services are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange such as money. So यहाँ पे money included नहीं है. This kind of exchange में money is not included. Bartering is a direct trade of goods and services. Okay, goods भी deal कर सकते हैं इसमें barter system में and services भी deal कर सकते हैं. This used to exist in ancient times. आज के डेट में ये exist नहीं करता है because आज majority of transactions okay happen only because of money, or you can say that majority of transaction which take place nowadays उसमें medium of exchange, that is something in return जो होता है वो money होता है. Okay. Also, barter economy is known as C2C economy, that is commodity to commodity economy. Next is difficulties of barter system. First point is lack of double coincidence of wants and exchange. Let us understand first double coincidence of wants and exchange. मतलब अगर एक पर्सन कुछ राइस या ऐसा कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, अज्यूम करो राइस बेचने की ट्राई कर रहा है, ठीक है, और उसको इन रिटर्न फिश चाहिए, ठीक है, क्लियर. तो अगर वो राइस बेचने जा रहा है और सामने वाला पर्सन राइस एक्सेप्ट कर रहा है और सामने से पर्सन उसको फिश भी दे रहा है, ठीक है, तो इट इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एंड एक्सचेंज. बट इन बार्टर सिस्टम इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड एक्सचेंज होता है बिकॉज इट इज नॉट यूजुअल कि आप जो बेचने जा रहे हो वो सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट भी कर लेगा, और अगर उसने कर भी लिया, क्लियर, तो ऐसा तो बहुत रेयरली पॉसिबल होगा कि आपको जो चाहिए वो सेम पर्सन आपको वो ऑफर भी कर रहा होगा. ओके, सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस व्हाट वन पर्सन वांट्स टू सेल एंड बाय मस्ट कोइंसाइड, मतलब दोनों सेम होना चाहिए with what some other person wants to buy and sell. Simultaneous fulfillment of mutual wants by the buyer and seller is known as double coincidence of wants. मतलब आप राइस बेचने जा रहे हो और आपको फिश चाहिए, ठीक है, तो सामने वाले को भी राइस का एक्सेप्टेंस, राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिश देना पड़ेगा, और आपको फिश एक्सेप्ट करना और राइस देना है. ओके, there is a lack of double coincidence in the wants of buyers and sellers in barter exchange. Okay, तो ऐसा double coincidence होता नहीं है generally in barter exchange. It is very rare in barter system. Okay, the producer of jute may want shoes in exchange for his jute. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक jute maker है, ठीक है, उसको shoes चाहिए अपने jute के exchange में. Okay, but he may find it difficult to get shoemaker who is also willing to exchange his shoes for jute. ठीक है, कोई शू मेकर अगर उनको मिल भी गया जो शूज देने के लिए रेडी है, बट वो शायद जूट को एक्सेप्ट नहीं करे, वो उसके बदले कुछ और चीज का डिमांड कर सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे टी का डिमांड कर सकते हैं, या शुगर का डिमांड कर सकते हैं, गोल्ड का डिमांड कर सकते हैं, सिल्वर का डिमांड कर सकते हैं, या कोई भी डिफरेंट कमोडिटी का डिमांड कर सकते हैं. Okay, so this is lack of double coincidence of want and exchange. That is the first difficulty of barter system. Next difficulty of barter system is lack of common measure of value. Lack of common measure of value means आप कोई भी different commodities को एक single unit में, in example money में आप measure नहीं कर सकते in barter system. Okay, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज आपको किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को वैल्यू करना है तो आप उसके प्राइस के टर्म में उसको वैल्यू करते हो. ओके, तो एक कॉमन यूनिट है प्राइस, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, अज्यूम करो जैसे कि एप्पल्स आर फॉर सेल लाइक 150 रुपीज अ केजी. ओके, मैंगोज आर लाइक से फॉर
600 रुपीज अ डजन, ठीक है। तो आप हर चीज को वैल्यू कैसे करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। बट इन बार्टर सिस्टम ऐसा कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता, ठीक है, मनी जैसा, ओके। सो इन बार्टर देयर इज नो कॉमन मेजर और यूनिट ऑफ वैल्यू इवन इफ द बायर एंड सेलर ऑफ ईच अदर कमोडिटी हैपन टू मीट। मतलब अगर कोई जो पर्सन, जैसे हमारा एग्जांपल था, अगर कोई राइस बेचने वाला जिसको फिश चाहिए और अगर कोई फिश बेचने वाला जिसको राइस चाहिए, अगर वो लोग दोनों मिल भी गए, ठीक है, द प्रॉब्लम अराइजेस इन व्हाट प्रोपोर्शन द टू गुड्स आर टू बी एक्सचेंज, ठीक है, बिकॉज राइस एंड फिश दोनों के प्राइसेस आर वेरी मच डिफरेंट, ओके, दोनों का वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन से कितने प्रोपोर्शन में एक पर्टिकुलर पर्सन एक कितना राइस देगा और उसके बदले में कितना फिश एक्सेप्ट करेगा, ओके। Each article must have many different values as there are other articles for which it is to be exchanged, ठीक है। जरूरी नहीं है कि राइस is to be exchanged only for fish, ठीक है। राइस can be exchanged for fish, salt, tea, sugar, gold, silver and many more commodities, okay. When thousands of articles are produced and exchanged, there will be unlimited number of exchange रेशियो, ठीक है। मतलब जब भी बहुत सारे कमोडिटीज प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और अगर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है, क्लियर, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रेशियोज हो जाए, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 1 kg ऑफ राइस के लिए 2 kg ऑफ व्हीट, 1 kg ऑफ राइस के लिए 1 फिश, 1 kg ऑफ राइस के लिए 3 kg ऑफ सॉल्ट, 1 kg ऑफ राइस के लिए 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड मेनी मोर, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे रेशियोज हो सकते हैं, ठीक है, जिनको रिमेंबर करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, ओके। एब्सेंस ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एक्सचेंज रेशियो क्रिएट्स मेनी डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ये कॉमन डिनोमिनेटर या कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता, इसके वजह से ये और एक डिफिकल्टी क्रिएट होता है विच इज नोन एज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब आप कोई भी कमोडिटी को डिवाइड कैसे करोगे, ओके। सो हाउ टू एक्सचेंज गुड्स ऑफ अनइक्वल वैल्यू, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी या कोई पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा अनइक्वल है, तो आप उसको कैसे एक्सचेंज करोगे, ठीक है। आप बोल सकते हो उनको क्वांटिटी में डिवाइड करके, ठीक है, तो इट इज पॉसिबल, ओके। So if a household wants to sell his horse and get in exchange cloth equal to the value of half of his horse, ठीक है, मतलब हॉर्स का जो वैल्यू है, ठीक है, एक घोड़े का, ठीक है, उसके आधे वैल्यू का अगर उनको क्लोथ्स परचेस करना है, तो अभी वो हॉर्स को कैसे डिवाइड करेंगे? क्या आधे हॉर्स को दे देंगे, ठीक है। अगर आधे हॉर्स को दे दिया तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज जो ओनर है उसके लिए भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा और जो परचेस कर रहा है उसके लिए भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। सो ही कैन नॉट डू सो, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा वो कर नहीं सकते, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में बहुत बार डिविजिबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कि आप कोई भी कमोडिटी को डिवाइड कैसे करोगे, ओके। Thus, lack of divisibility of goods make barter exchange impossible, ठीक है। कुछ ऐसे कमोडिटीज में, सब कमोडिटीज में तो नहीं, बट कुछ ऐसे कमोडिटीज में, इन सब कमोडिटीज जहां पे divisibility is not possible, वहां पे barter system exchange is also not possible. In order to overcome the above disadvantage of barter system, the money was invented by the society, okay. So ये जो एक बहुत बड़ा disadvantage था, lack of divisibility, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज इन्वेंटेड। नेक्स्ट डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इज प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। मतलब अगर आपके पास वेल्थ क्रिएट भी हो जाता है इन एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, आप उसको स्टोर कैसे करोगे, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे गुड्स या ऐसे कमोडिटीज होते थे, मैक्सिमम कमोडिटीज जो पेरिशेबल होता था। पेरिशेबल मतलब विद द टाइम स्पेंड, ठीक है, धीरे धीरे करके उसका वैल्यू डिटोरिएट हो जाता है, उसका क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है, ओके। सो ये प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ भी बहुत बड़ा आप बोल सकते हो डिफिकल्टी या डिसएडवांटेज है ऑफ बार्टर सिस्टम, ओके। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ और जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। आप कितना भी वेल्थ एक्यूमुलेट कर लो, ठीक है, आप जमा कर लो, ठीक है, कितना भी वेल्थ आपके पास कोई भी कमोडिटी में, आप उसको फ्यूचर यूज के लिए तब तक स्टोर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई प्रॉपर स्टोरिंग फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपका वेल्थ पेरिशेबल कमोडिटी में, तो आप उसको कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है।
सो फॉर फ्यूचर यूज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स लाइक कैटल, ठीक है, तो कैटल का एक पर्टिकुलर एज होता है, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। वीट्स, पोटैटोज या कोई भी क्रॉप्स या ग्रेन्स, ठीक है, वो पेरिशेबल होते हैं, ठीक है। आफ्टर अ पर्टिकुलर ईयर या आफ्टर अ पर्टिकुलर स्पेन ऑफ टाइम, ठीक है, वो डिटोरिएट होने लगते हैं, उनका क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, क्लियर, एक्सेट्रा। तो वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पे एंशिएंट टाइम्स में जब भी वेल्थ के फॉर्म में मनी नहीं होता था, ठीक है, तो आपके पास ये सब पेरिशेबल गुड्स होते थे जिनको आप इतना लॉन्ग लाइफ तक, क्या बोल सकते हो, लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे, ठीक है। होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ सच गुड्स इन्वॉल्व कॉस्टली स्टोरेज एंड डिटोरिएशन, ठीक है। अगर आप होल्ड भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता था, ठीक है, तो वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है, क्लियर। एकदम हाईली आप बोल सकते हो इक्विप्ड फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग गुड्स, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं था और उसमें भी आपके गुड्स तो डिटोरिएट होने ही वाले थे, ठीक है। ऑल्सो यू कैन हैव अ डाउट कि अगर गोल्ड और सिल्वर आपके पास कमोडिटी के जैसा होता तो क्या आप उसको स्टोर कर सकते थे? आंसर इज यस, कर सकते थे, बट अगेन द स्टोरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज टू कॉस्टली एंड डेंजरस एज वेल। कॉस्टली एंड डेंजरस एज वेल बिकॉज, क्योंकि अगर आप उसको स्टोर करके रखोगे तो उसके लिए आपको बहुत बड़े सेफ हाउस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जहां पे आप उसको स्टोर कर सको, ठीक है, और हमेशा एक पॉसिबिलिटी होगा कि उसका चोरी हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई आके उसको लूट सकता है, ठीक है, उसको स्टील कर सकता है फ्रॉम यू, ठीक है। सो ये वो टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक है, जब बार्टर इकोनॉमी एग्जिस्ट करता था, ठीक है, कि लोगों के पास वेल्थ होता था तो उसको स्टोर कैसे करें। Next important difficulty of barter system is lack of standard of deferred payment. The word deferred here means future payment. Okay, deferred का meaning क्या होता है? Future payment. मतलब अगर आपने कुछ लोन लिया है तो आप उसका फ्यूचर में पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है, क्लियर, उसको हम बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर एक पर्सन से पर्सन ए पर्सन बी से हॉर्स, ठीक है, घोड़ा बोरो करता है फॉर 2 years, ठीक है, क्लियर, तो क्या वो 2 years के बाद वो सेम हॉर्स को रिटर्न करेगा? आप लोग बोलोगे यस, सेम हॉर्स को रिटर्न करेगा, बट द आंसर इज नो। 2 years के बाद वो हॉर्स का एज 2 years से बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब वो हॉर्स थोड़ा ओल्ड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, और उसका जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो उतना ही नहीं रहेगा, क्लियर। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है अगेन इन बार्टर सिस्टम, दैट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग in barter system. It is difficult to engage in a contract which involve future payment. Deferred payment is known as future payment. Okay, due to lack of any satisfactory unit, ठीक है, आप फ्यूचर में कितने अमाउंट में या कितने टर्म्स में पेमेंट करोगे, ठीक है, that is very much unsatisfactory. Okay, as a result future payments are to be stated in terms of specific goods or services, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज में आपको स्टेट करना पड़ता था, आपको अमाउंट बताना पड़ता था कि इतने अमाउंट या इतने गुड्स या इतने यूनिट्स ऑफ गुड्स आप दोगे, ठीक है, बट उस टाइम पे वो पर्टिकुलरली पॉसिबल नहीं था। ओके, बट देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स, स्पेसिफाई टाइप ऑफ गुड्स एंड चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर एक बार ये एग्रीमेंट हो भी गया ऑफ लोन का, ठीक है, क्लियर, स्टिल इट इज अब बोल सकते हो देयर इज अ चांस कि लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाए कि कितना क्वालिटी ऑफ गुड्स या कौन से क्वालिटी ऑफ गुड्स दोगे, ठीक है, कितना यूनिट ऑफ गुड्स दोगे, ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ गुड्स दोगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स, एंड क्या वैल्यू ऑफ गुड्स आप एक्सचेंज करोगे, ठीक है। सो बेसिकली लोन का या बोरोइंग एंड लेंडिंग का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इन C2C इकोनॉमी, दैट इज कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी और बार्टर इकोनॉमी।